नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर 10th क्लास मैथमेटिक्स सेक्शन इन द चैनल एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी। तो बिफोर डे yesterday or 2 days back we have discussed with you there is a method to solve the pair of linear equations in two variables. The method was elimination method, and the previous method we have discussed just 4 or 5 days ago, that was the substitution method. Today we will discuss both methods again, so don't miss the video. Those students which have not seen the video, they don't miss the video, and we will see the total clarification about the substitution method and the elimination method. Side by side we will discuss two methods. So let's start. First of all, the equations. So any equation we will take, you can take the first. There is a substitution method, very important concept of 10th class for the chapter number 3, and there is a elimination method. So we will discuss both methods. We will solve the sums based on the both methods. First of all, equation is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. तो सेम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. So understand please. Now in substitution method, first of all write x plus y is equal to 5, equation number 1, and second is 2x minus 3y is equal to 4, equation number 2. So we have discussed already there. Now from equation number 1, x plus y is equal to 5 as it is. So find the value of x in terms of y. Take plus y to the right hand side, that will become the minus y. आपने उधर ले जाना है y को, x की वैल्यू 5 माइनस y आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सपोज कर लो 3। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू ली है, y की फॉर्म में ली है, y के इक्वल लिखा है, ये y है, कुछ ये 5 है। ये जो x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन से ली है वो पुट कर देनी है x की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में। Put x is 5 minus y in equation number second. So here is 2x, तो ब्रैकेट में डाल दो आप, यहां पर आ गया 5 minus y and after that there is a minus 3y is equal to 4. Multiply this 2 with 5 and y 1 by 1, 2 5 the 10 minus 2y minus 3y is equal to 4. It's minus 2y minus 3y. So y variable is same. And here is minus 2, here is minus 3, minus 2 and minus 3, minus 5, and this 10 we are now taking this 10 to the right hand side by changing the sign of 10. There is a no sign, that means there is plus and there is a minus. So don't miss the video in between the lecture. Please see the whole video so you can get the understanding about this topic. 4 minus 10 is minus 6. So y will be minus 6 minus 5, this divide, minus 5 minus minus cancel, so y, the value of y is equal to 6 over 5. Now put this value y is equal to 6 over 5 in equation number 3. So here we are put x is equal to, sorry, x not x, y is equal to 6 over 5 in equation number 3. So here we are putting x equal to 5 minus y is our 6 over 5. So you can write this 5 over 1 students, 5 over 1, no change, 5 over 1 means 5 minus 6 over 5. So now cross multiply, first of all take the LCM, there is a 1, there is 5, multiply 5 on the 5, and this 5 that cross multiply 25 and 6 on the 6. So x comes out to be 25 minus 6, 19 over 5. So x is equal to 19 over 5, y is equal to 6 over 5 by substitution method. Now solve by elimination method. Elimination method में क्या किया था हमने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 चूज करनी है, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट x के और फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट x के हमने सेम करने हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। कैसे, जैसे सेकंड इक्वेशन में ये x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, x के आगे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर 1 है एक्चुअली, तो यहाँ इसको 1 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप, ये बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10, देन 1 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. So now there is a line
we are doing the subtraction. We perform the subtraction. In subtraction, change the sign. There is a 2x plus sign, now become minus. There is a minus sign, there is a plus, and there is a plus sign, there is a minus. 2x plus 2x minus cancel out, and this 2y plus 3y, this is the plus sign now. 2y plus 3y is equal to 5y, and 10 minus 4, you know students, 6, and y comes out to be 6 over 5. 5 नीचे आ गया. Put y is equal to 6 over 5 in equation number 1. So यहाँ पर कुछ नहीं होता कि 1 में या 2 में पुट करना, किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी काउंटिंग अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहली ये बनती है. तो यहाँ पर आ गया x प्लस यहाँ पर y है 6 over 5 इज इक्वल टू 5. तो आप 6 over 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे, माइनस का 6 over 5 हो जाएगा. यहाँ पर जो 5 है वहां पर 1 लगा के ऊपर इसका एल्सियम ले लेंगे. 5 1 द 5 एल्सियम, 5 5 द 25 माइनस 6 1 द 6. x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 कर दो आप. 25 में से 6 कैन 19 over 5, x 19 over 5 and y is equal to 6 over 5. So see the answer, both answer are same in all the sums. Now we will do again one more sum, 3 or 4 sums we will do, elimination method or substitution method, and that topic is too much important in all medium, whether Punjab School Education Board, Central Board of Secondary Education, CBSE, ICSE, or all other mediums which are prevailing in India and also in outside the India. They are all important. Now one more sum we will discuss. 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, and this is 9x is equal to 2y plus 7. So here we will do by substitution method, and there on the right hand side we will solve this sum by elimination method. Just wait for a while, students. Yes, now so substitution method, there is a second question, there is a little bit we want to change. So first equation as it is, write down. This is first equation. Now second question we will write 9x. First of all 2y राइट साइड के इधर पड़ा है, राइट साइड के इधर इक्वल के बाद इसको इधर ले आओ, माइनस 2y साइन चेंज हो गया, और प्लस 7 को भी आप उधर ले जाओ दूसरी साइड पे, ये माइनस हो गया तो इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आ गया 0. ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2. सीधा सा फंडा आपने एक छोटा सा आइडिया ले लेना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है. हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लेनी है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 there is a 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, and take this y term and constant term 4 to the right hand side, that will become the 0, minus 5 to the plus 5, here comes minus 4 is plus 4. So 3x is equal to 0 plus something, that also left only 5y plus 4, and x will be 5y plus 4 over 3. x अकेला निकालना है हमने, 3 वगैरह या 2 को कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर देना. ये इक्वेशन नंबर 3 होगी आपकी. अब आपने क्या करना है, पुट कर देनी है x इक्वल टू जो 5y प्लस 4 ओवर 3 है इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज सेकंड फर्स्ट में से हमने शुरू किया था, सेकंड में पुट करना है. यहाँ पर ये आ गया आपका 9x, x है आपका ये 5y प्लस 4 ओवर 3, ये आ गया माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल कर दो आप, 3 के 9, 3 के टेबल के ऊपर 9 आता है, 3 3 9, ये 3 को अकेले के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 3 5 द 15y प्लस 3 4 द 12 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल डू अगेन subtractions, and this is 15y minus 2y, 15y minus 2y 13y, and this 12 minus 7, students 12 and 7 coefficient y subtracting, and constant term subtracting. 12 minus 7 5 is equal to 0. तो 13y is equal to 5 minus 5 इधर ले जाओ आप, कितना आ गया आपका 13y is equal to 5. तो यहाँ पर लिख लोगे आप 13y is equal to 5, तो y is equal to 5 over 13. ये y is equal to 5 over 13 आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर थर्ड में स्टार्ट 3 इक्वेशन में पुट कर दो. तो 5y आपका है 5 over 13, यहाँ पर आ गया 5 over 13, एंड आगे है आपके लिए प्लस 4 over 3. तो यहाँ पर आपको
5 यहाँ पर 13 आप एल्सियम लीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, और ये 5 5 दा बन गया आपका 25 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो 5 5 दा 25 1 25 1 दा 25 एंड 13 4 दा 52 ओवर आप 3 के ओवर 1 लगा दोगे 3 ओवर 1, तो x आपका आ गया 25 प्लस 15 कितना हो गया, ऐड कर दो 52 को, ये बन गया 77 ओवर 13, और जो 3 ओवर 1 है और चेंज होकर 1 ओवर आपका 3 आ जाएगा, तो x आपका आ गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा किसी टेबल के ऊपर, तो 77 1 दा 77 और 13 3 दा 69, तो x will be this is 77 over 69 and now this is value of x and this is value of y. Now by elimination method let's do. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हमने क्या किया था, ये इक्वेशन जो है उसको सही तरह से ऐसे लिख लिया था, तो एलिमिनेशन मेथड में मैं सीधी इसको चेंज करके जो है वो लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, दूसरे सम में एलिमिनेशन मेथड में ये 2 है। आपने करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन का जो कोएफिशिएंट 9 है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी आप शो कर सकते हो उधर भी कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट डाल के, और जो फर्स्ट क्वेश्चन का x का कोएफिशिएंट है 3 उसको 3 के साथ सेकंड क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 को सभी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, 9 3 27x माइनस 9 5 दा 45y माइनस 9 4 दा 36 इज इक्वल टू 0। आगे ये नीचे कर दो मल्टीप्लाई, 3 9 दा 27 3 2 दा 6y एंड 3 7 दा 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस का बन गया प्लस, ये 27x माइनस 27x कैंसिल आउट, व्हाट लेफ्ट 45 माइनस प्लस 6, 45 प्लस 45 से 6 माइनस कर दो आप, वहां गया 39y, साइन आएगा जो चिन्ह आएगा साइन शुड बी ऑफ ग्रेटर नंबर इज 45, तो साइन इज विद 45 देयर इज ए नेगेटिव साइन, एंड दिस 36 minus 36 plus 21 it is minus 15 is equal to 0, and we will take the minus 15 to the right hand side, that will become the plus 15, y is equal to 15 over minus 39, ये आपका आ गया। अब इसको आप 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड कर सकते हो, वो देखना है हमने कैसे करना है, 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड भी कर दो। हाँ जी, अब जो y की वैल्यू आ रही है हमारी, ये थोड़ा सा देखना है कि अपने चेंजेस हो रही हैं, कुछ थोड़ी सी चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू मैंने गलती से तो नहीं लिख दी, लेट्स सी, ये ठीक है, -2y हो गया आपका, -7 हो गया, ये भी ठीक है, ये आ गया 15 माइनस 2 13 हो गया, 12 यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, 12 माइनस 7 यहाँ पर 5 था प्लस का, तो ये मैंने माइनस का लिख दिया, +5, दूसरी तरफ जाकर ये बन जाएगा -5, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आ गया आपका -5 और 13, तो यहाँ पर -5 और 13 आपका x की वैल्यू थी जो पुट कर रहे थे आप, यहाँ पर जो 25 है वो माइनस का आ जाएगा, और 52 में से जो 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आ गया 27, तो ये अच्छी तरह से आप देख लेना, 27 ये बन गया, नीचे आ गया 13, कोई बात नहीं, चेंज हो गई है ये 1/3, अब इसको डिवाइड कर दो, 3 9 27, x आ गया आपका 9/13, ये वैल्यू आ गई। चलो यहाँ पर आप देखते हैं, ये y की वैल्यू ये आ गई, हमने माइनस करके देख रहे थे, 3 के टेबल के ऊपर 3 5 15 3 39, तो y इज इक्वल टू -5/13, ये पुट कर दो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 1 में से पुट कर दो, ये इक्वेशन है आपकी 3x एज इट इज, ये है -5y, y आपका है -5/13, आगे आ गया -4 इज इक्वल टू 0, तो आपका ये 13 एलसीएम आ गया, 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बनेगा 39x सॉरी, और ये माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 5 5 दा 25, और ये 13 आपका इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 13 4 दा 52 इज इक्वल टू 0। अब 13 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाना है, और बाकी जो बच गया वो है 39x, और 52 में से आपने 25 को माइनस कर देना है, ये आ गया -27 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ एक दफा, 39x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, आपने क्या करना है, 27 को दूसरी तरफ ले जाना है, 27 हो गया, प्लस का माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया,
और ये 39 इसके साथ डिवाइड कर दो, 27/39। ये 3 के टेबल पे ऊपर आ गया, 3 9 द 90, 27, 3 13 द 39। ये 9/13 यहाँ पर था, यहाँ पर भी 9/13 था, तो y की वैल्यू ये पहले भी यहाँ आई थी सेम, और यहाँ दोनों पर ये सेम आ गई। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एलिमिनेशन मेथड ये है, और ये है आपका दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जरूर इसको फोकस करना, जहां पर आपके स्टेप्स नहीं सॉल्व होते अपने आप, तो मेरी वीडियो को देखकर आपने स्टेप्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना। जितनी भी प्रैक्टिस आप कर लोगे वो आपकी एफिशिएंसी एग्जाम में और टेस्ट में बढ़ाएगी। तो इनको मतलब आप समझ सकते हो कि इजीली लेना है आपने, और ज्यादा भी इजीली नहीं लेना ताकि आपको प्रॉब्लम कुछ आए। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं एक और सम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरे सेम है एलिमिनेशन मेथड। पेपर में कोई भी मेथड आ सकता है। ये है इक्वेशन का 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये सपोज कर ली हमने, ये सेकंड बन गया। तो आपने क्या करना है, ये डेसिमल है, डेसिमल को देख के अच्छी तरह से समझ लेना, सिंपल ही है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लोगे, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहां पर एक मैं सीधा सा फंडा आपको बता दूं, यहां पर 2 आप 10 लिख लो, 2/10x प्लस 3/10y, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। x को डिजिट नहीं मानना, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। ये अगर 13/10, तो 10 यहाँ पूरा का 10 लेफ्ट साइड में जो एलसीएम आएगा वो 10 ऐसे दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, 1/10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपका रह गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसी तरह आप दूसरी क्वेश्चन को लिख सकते हो स्टूडेंट्स, सिमिलरली करके ये क्वेश्चन को सीधा ही 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये फर्स्ट एंड सेकंड इसको माना था, चाहे इनको रहने दो तो चाहे इनको करो 3 और 4, कोई बात नहीं, यहां से सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में आप लिखोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आप x की वैल्यू इन टर्म y निकालोगे, प्लस 3y उधर जाकर माइनस 3y हो जाएगा। एंड नाउ 2x इज इक्वल टू दिस x कम्स आउट टू बी 13 माइनस 3y ओवर 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको 5 सपोज कर लो, आप पुट कर दो आप x की वैल्यू जो कितनी है 13 माइनस 3y ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर, हमने थर्ड से कैलकुलेट की थी x की वैल्यू, और फोर्थ में पुट कर देनी है, ये फोर्थ इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 4 यहां से पुट कर दो आप। 4 आपका ऐसे आ गया, x की वैल्यू ये है पूरी, ये पुट कर दो 13 माइनस 3y ओवर 2, इसके बाद है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 कैंसिल हो गया 4 के साथ, 2 to the 4, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो अकेले से, 2 13 दा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 26, और 2 3 दा 6y, आगे है आपका प्लस 5y और इज इक्वल टू है आपका 23। तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स माइनस 6y प्लस 5y माइनस 1y हो गया, 6 माइनस 5 क्या माइनस 1y मीन्स y, और 23 में से आपने 26 उधर जाकर दूसरी तरफ से माइनस कर देना है। 23 में से 26 माइनस किए, आपके कितने आगे माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये पुट कर देनी है y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर हमने फिफ्थ में यहाँ पुट कर दो। तो x आपका आ गया 13 माइनस 3y, y आपका है 3 ओवर नीचे है 2, तो ये बन गया आपका 13 माइनस 3 3 9 ओवर 4 2 सॉरी, तो ये बन गया 13 माइनस 9 4 ओवर 2 कैंसिल होकर आउट 2 आ गया। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द एलिमिनेशन मेथड। ये क्वेश्चंस को फिर आपने डेसिमल को रिमूव करके लिख देना है। पहले मैं क्वेश्चंस वैसे लिख रहा हूं जैसे स्टेटमेंट में गिवन है आपको। अब आप क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक ही डिजिट है, एक एक डिजिट होने के कारण वो वहां पर 10 बन जाएगा, जो कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लो एलिमिनेशन मेथड में, और दूसरी भी पॉइंट आपका हट गया, रिमूव हो गया, वो एलिमिनेशन मेथड में आपका 23 बन गया 2। अब आपने करना क्या है, कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं x और y के। यहाँ पर सैकड़ों क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट कितना है 4, ये 4 है, तो यहाँ पर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और फर्स्ट क्वेश्चन में जो x का कोएफिशिएंट कितना है वो 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो अकेले को, 2 4 द 8x। स्टूडेंट्स देखना
4 3 द 12y is equal to students, let's see 13 4 the 52. So let's now multiply the second question 2 with this 4. So 2 4 the 8x plus 2 5 the 10y is equal to 223 the 46. अब माइनस कर दो, साइन चेंज करो, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, 8x कैंसिल हो गए। अब आपका 12y में से 10y माइनस कर दो, वहां पर आ गया 2y, और 52 में 46 आपका माइनस करके आ गया 6, तो y आपका 6/2 करके 3 आ गया, 2 3 6 होके y की वैल्यू 3 आ गई। ये पुट कर दो y की वैल्यू आप 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहाँ पर, तो ये बन गया आपका 2x प्लस 3y, y आपका है 3 इज इक्वल टू 13, ये बन गया आपका 2x प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 हो गया आपका, और 9 को आप राइट साइड पे यहाँ पर दाएं साइड पे ले जाओगे, माइनस बन गया 9, 2x आपका आ गया 4 और x आपका आ गया जो 4/2 है, ये 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2 टू द 4, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यहाँ पर भी आपने देखी थी x की वैल्यू 2 ही आई थी और y की वैल्यू आपकी 3 आई है एलिमिनेशन मेथड में, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में y की वैल्यू आपकी 3 आई थी। ये स्टूडेंट्स ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसको एक और सम देखते हैं, पूरी वीडियो को देखते रहना, अच्छी तरह से समझ रहना कि क्या क्या हम कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक, मेरी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर @फ्यूचर सेवर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े इजी मेथड पूरी अंडरस्टैंडिंग पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ भी लगेंगे आपको। तो आपने अगला सम देखना है, जो आगे वाला सम है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा है आपका x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आपने करना क्या है, इसमें पहले ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले इक्वेशन जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे हो गया। आप एलसीएम ले लो, 2 3 6 एलसीएम, 3 3 जहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 9x - 2 5 10y इज इक्वल टू -2। आपने -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई करके आ गया -12। एक तो ये क्वेश्चन लिख लेनी है आपने, और दूसरी क्वेश्चन कौन सी है, ऑल्सो हमें मालूम है कि दूसरी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहां पर आपने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों को, 3 2 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 6 को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चले गया, न्यूमरेटर में 6 1 6 कैंसिल, ये बच गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 1 30। सो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं सॉल्व होके, एक ये बन गई ऊपर वाली और ये। अब इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लो, और दूसरी क्वेश्चन जो आपकी आई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड आ गई। आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालनी है अभी y की टर्म में। पहले इक्वेशन मैंने ऐसे लिख ली, और आप क्या करोगे, यहां पर -10y को दूसरी तरफ ले जाओगे आप, प्लस 10y हो गया, तो x आपका हो गया -10 प्लस -12 प्लस 10y/9, 9 आपका नीचे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड होगी। आपने पुट कर देनी है x की वैल्यू -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली थी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर दो। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर पुट कर दो, ये बन गया आपका 2x, x आपका क्या है -12 प्लस 10y, ये आपका हो गया /9, ये हो गया x, यहां पर पुट कर रहे हैं हम, प्लस 3y इज इक्वल टू यहां पर आ गया 13। अब एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, -2 12 टू द -24 प्लस 2 10 द 20y, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना, और 3 आपका जो एलसीएम 9 है आपका, वो मल्टीप्लाई कर दो 27y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 13। तो ये है 20y, ये है 27, बन गया 47y, y 47 हो गया, ये -24 लिख दो, और आपका जो 9 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया आपने। 47y -24 आपका 39 होता है 117, और आपने क्या करना है, जो -24 है
उसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो प्लस 24 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। 47y, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, आपका कंफ्यूजन ना हो। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ये बन गया 141। तो y आपका आ गया 141 ओवर 47। 47 के टेबल के ऊपर 141 3 के टेबल पे आता है, 47 3 141, तो y आपकी कितनी आ गई 3। ये y की वैल्यू आपकी 3 जो आई, तो यहां पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, ताकि x आपको पता लग जाए। अब कर दो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कहां पे, थर्ड पे। तो x आपका आ गया स्टूडेंट्स -12 प्लस 10, यहां पर आ गया 10y है आपका 3 ओवर नीचे आ गया आपका 9। x -12 प्लस 10 3 कितना होता है 30 ओवर 9। इधर लिख रहा हूं मैं 30 में से 12 गए, x आ गया 30 में से 12 माइनस कर दो 18 ओवर 9, और कैंसिल करके 9 टू द 18 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, y की वैल्यू 3 आ गई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स स्टार्ट द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था, तो ये सारा सभी स्टेप, ये 3 स्टेप जो हैं लिख के पहली क्वेश्चन को रिफॉर्म करके अच्छी तरह से बना लेना है, उसको सही फॉर्म में लिख लेना है, और ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ और यहाँ ये स्टेप जो किए हैं मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको समझ लगेगी कि ये स्टेप आप रिपीट करके दोनों क्वेश्चंस को यहाँ से लिख लोगे आप। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये लिख लिया पहली, और दूसरी है आपकी 2x, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, सेकंड क्वेश्चन के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं x के को पहली क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर 2 आपका, तो क्वेश्चन आपकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो कोएफिशिएंट है x का वो कितना है 9, तो सेकंड को उसके 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 9 टू द 18x स्टूडेंट्स, 10 टू द 20 सॉरी, एंड 2 टू -12 द -24। माइनस का साइन का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बी फोकस स्टूडेंट्स। 9 टू द 18 प्लस 9 3 द 27y एंड आल्सो 39 द 170। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए। -20 और -27y, ये -27 का हो गया साइन, अब -20 और -27y बन गया -47y, और -117 और -24, 117 में से 24 दोनों को ऐड कर दो, वो भी 141 माइनस का आ गया। आपका y आ गया -141, ये -47 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 47 3 आपने देखा तो कैंसिल होके 3 के टेबल के ऊपर ये 41 कैंसिल हो जाएगा। पुट कर दो अब y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहाँ पर, तो आपका आ गया 9x ऐसे ही आ गया, -10y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इज इक्वल टू कितना है -12। नाउ 9x माइनस 10 3 30 स्टूडेंट्स, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫਟੇ, बहुत सौखे समा, बहुत ईजी हो जाने हैं। तो 9x इज इक्वल टू -12 -30 राइट साइड पे जाके +30 हो जाएगा, तो 30 - 12 18 एंड x इज इक्वल टू 18 ओवर 9, तो 9 टू द 18, तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x 2 आया था, यहाँ पर भी 2 आ गया, y 3 है, तो यहाँ पर आपका y 3 आया था। तो दीज आर द सम्स फॉर द टुडे लेक्चर। Enjoy the teaching and enjoy by solving the sums। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना था। हैव ए नाइस डे, नमस्ते, टेक केयर।